السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان کا D8 اجلاس سے ورچوئل خطاب، کہا کورونا وبا کی وجہ سے لاکھوں افراد بے روزگار، کروڑوں مقروض ہو گئے، عالمی معیشت کو بہت نقصان پہنچا، عوام کو صرف کورونا سے نہیں بے روزگاری سے بھی بچانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 5 نکات بھی بتا دیے۔ پیپلز پارٹی کا وفد ANP کے مرکز 4 سدہ جا پہنچا، ANP کی PDM سے علیحدگی کے معاملات پر گفتگو۔ نیئر بخاری کہتے ہیں PP ANP اور دیگر جماعتیں مل کر لائحہ عمل تیار کریں گی، جلد لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ میاں افتخار نے کہا پیپلز پارٹی کے وفد سے سیاسی فضا کے حوالے سے بات ہوئی، ANP PDM سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ماضی میں ایسے قرضے لیے گئے جن میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ نون لیگی حکومت میں 20,000 ارب اور ہم نے 2.5 سال میں 35,000 ارب قرض واپس کیا۔ تعمیراتی منصوبوں سے قرضوں میں کمی آئے گی، بنڈل آئی لینڈ بننے سے باہر سے پیسہ آئے گا۔ پوری کوشش ہے غریب آدمی اپنا گھر بنا سکے۔ ML1 بننے سے کراچی سے لاہور کا سفر 8 گھنٹے تک رہ جائے گا۔ پاکستان میں 50 برس بعد 2 ڈیمز بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں فراش ٹاؤن منصوبے کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کئی بار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے، آمدن نہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر نیا دن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نون لیگی رہنما محمد زبیر عمر کی پریس کانفرنس، کہا عام آدمی ورلڈ بینک، عمران خان یا حماد اظہر کی رپورٹ نہیں دیکھتا۔ کراچی سرکولر ریلوے میں کتنا کام ہوا، تجاوزات ہٹانے میں کیا پیش رفت ہوئی، چیف جسٹس گلزار احمد کا سرکولر ریلوے بحالی کیس کی سماعت میں استفسار۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ کمشنر کراچی FWO کے نمائندے کی بریفنگ، چیف جسٹس کا عدم اطمینان کا اظہار، پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ وفاق نے صوبوں کو دیا کیا ہے، چھیننے کے پیچھے پڑا ہے، وفاق ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتا تو ہمارے حوالے کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاق پر تنقید، کہا مردم شماری پر 4 صوبوں کو اعتراضات تھے، نئی مردم شماری کا اعلان ہونا چاہیے، ایک بار پھر انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان میں کورونا کی وار تھم نہ سکے، مہلک وائرس، ایک دن میں مزید 98 افراد کی زندگیاں نگل گیا، اموات کی مجموعی تعداد 15,124 ہو گئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,329 نئے کیسز تصدیق، 49,816 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 10.69% ہو گئی۔ JUIF نے اپنا امیدوار نون لیگ کے حق میں دستبردار کر دیا، مفتاح اسماعیل مولانا فضل الرحمان کے متشکر۔ حکومت پر کڑی تنقید، کہا لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، NA 249 میں کوئی عمران خان کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتا، ہم PTI اور پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 49 کی حتمی فہرست جاری، فارم 33 جاری کر دیا گیا۔ الیکشن میں مجموعی طور پر 30 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کے انعقاد کے لیے اساتذہ اور سرکاری افسران کا تربیتی سیشن ہوا، ریٹرننگ آفیسر نے حلف لیا۔ NA 75 ڈسکا ضمنی الیکشن، پریزائڈنگ، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو ہدایت جاری، اسمارٹ فون ہونا لازمی قرار، لوکیشن کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت، موبائل سگنل کا مسئلہ ہو تو ریٹرننگ افسر کو رپورٹ کریں، امیدوار کے ایجنٹس فارم 45 کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کا لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کی جانب اہم قدم، 115 اراضی ریکارڈ سینٹرز قائم کر دیے۔ فردوس عاشقاوان کہتی ہیں وزیر اعظم نے قوم سے نظام بدلنے کا وعدہ کیا تھا، پٹواری نظام میں عوام کا استحصال ہوا تھا، ڈیجیٹل پاکستان کا نعرہ PTI نے لگایا۔ کراچی میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا PIDC پر دھرنا، سروس اسٹرکچر بہتر بنانے اور مستقل نہ کیے جانے کے خلاف دھرنا جاری رہے گا، وزیر صحت براہ راست مذاکرات کریں، لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مطالبہ، احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام۔ کوئٹہ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے ملازمین کا دھرنا 11ویں روز میں داخل، صوبائی حکومت اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، مطالبات منظور نہ ہوئے تو میٹرک امتحانات کا بائیکاٹ کریں گے، ریڈ زون کے راستے بند۔ اسلام آباد میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا لانگ مارچ، ملک کے مختلف مقامات سے احتجاجی مظاہرین کی اسلام آباد پریس کلب آمد جاری، پولیس کی بھاری نفری تعینات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، فیض آباد پر نجی تعلیمی اداروں کا قافلہ روک دیا گیا۔ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں، مینجمنٹ نے بہت سپورٹ کیا، پاکستان کو اس جیت کی ضرورت تھی، مایہ ناز بلے باز فخر زمان کی ویڈیو لنک پریس کانفرنس، کہا وسیم اکرم اور میاں داد سے متفق ہوں، ڈی کاک کا قصور نہیں، رن آؤٹ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔
ملک کو آگے لے کر جانے کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر عام شہری اور تمام پولیٹیکل پارٹیز پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جس کی نظر میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں یہی کرپٹ مافیا اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شوپیاں میں حریت پسندوں کے حملے کے بعد قابض فوج کا دوسرے روز بھی پوری وادی میں آپریشن جاری۔ انڈین پولیس نے جعلی آپریشنز کے دوران انکاؤنٹرز کی لائیو کوریج پر پابندی عائد کر دی۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج پر فائرنگ سے مزید 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ مجموعی ہلاکتیں 600 سے تجاوز کر گئیں۔ لندن میں میانمار سفارت خانے پر ملٹری اتاشی نے قبضہ کر لیا، سفیر کو باہر نکال دیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت برقرار، دادو مٹی چھور میں پارا 40 ڈگری کو چھو گیا۔ کراچی، تربت اور لسبیلا میں 39 ڈگری ریکارڈ۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف اضلاع میں آج پھر ہلکی بارش کا امکان۔ 8 سالہ مارشل آرٹسٹ چیمپئن فاطمہ نسیم کا بڑا کارنامہ، ایلبو اسٹرائک مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ کو شکست دے دی۔ یہ ریکارڈ پہلے بھارتی فوجی کی اہلیہ اونیال کے پاس تھا۔ اور پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ استاد اسد امانت علی خان کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ ان کی گائی ہوئی غزلوں اور کلاسیکل راگ کو عالمی شہرت ملی۔ ان کی غزلیں اور گیت آج بھی افسردہ دلوں کی تسکین کا سبب بنتے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومتوں میں بدقسمتی سے ایسے قرضے لیے گئے ہیں جن سے مزید قرضے چڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے خطاب، کہا بینکوں کو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی عادت نہیں تھی اور بینکوں سے چھوٹے قرضے حاصل کرنے میں لوگوں کو اب بھی مشکلات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں فراش ٹاؤن میں ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سنگ بنیاد کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سستے قرضوں کے لیے ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں، بینک بھی تیار ہیں اور اسکیمیں بھی لانچ ہو رہی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ 2 سال کے اندر یہ اپنے لوگ یہاں اپنے ان کے گھر بن جائیں گے، گھر بنے ہوئے ملیں گے، یعنی کہ ان کو فلیٹس ملیں گے۔ میں اس کے لیے جنرل حیدر آپ کو اور نیا پاکستان ہاؤسنگ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ کوشش آپ نے کی۔ ملک میں مارگیج فائنانسنگ کا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں تھا اور مارگیج فائنانسنگ کا مرحلہ بہت مشکل تھا کیونکہ بینکوں کو چھوٹے قرضے دینے کی عادت نہیں تھی۔ یہ ایک ملک جدھر وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا مارگیج فائنانسنگ کا، اس ملک کے اندر ہر یعنی ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کی، کیسے آپ نے سستے گھروں کو انسینٹیوائز کرنا ہے، وہ بھی بڑا ایک لمبا پروسیس تھا۔ پھر آپ نے بینکوں کے ساتھ ریگولر میٹنگز کی، کیونکہ بینکوں کو بھی یہاں عادت ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، تو ان کے ساتھ پوری بیٹھ کے ریگولر نیگوسیشنز، اور ابھی بھی جاری ہیں کیونکہ ابھی بھی رکاوٹیں ہیں لوگوں کے لیے۔ جب وہ بینک میں جاتے ہیں تو ابھی بھی بینکوں کو وہ لوڈ سٹاف جو بینک میں جس کا کام ہے کہ سروس کرنا چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے قرضے دینے گھروں کے لیے، وہ ابھی بھی کیونکہ عادت نہیں ہے تو ابھی بھی مشکلات ہیں، لیکن ہم ان میٹنگز کی وجہ سے ریگولرلی یہ جو مشکلات ہیں یہ دور کرتے جا رہے ہیں۔ منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سستے گھروں کے لیے کئی مراحل طے کیے گئے ہیں۔ یہ ساری اسکیمز اس طبقے کے لیے ہیں جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کچی آبادیوں کو 600 گھر دینے پر سی ڈی اے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گھر بنانے کے لیے پیسہ نہ ہونے پر کچی آبادیاں بن جاتی ہیں۔ جو 600 گھر آپ کچی آبادیوں کو دے رہے ہیں، میں سی ڈی اے کو خاص طور پر اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 2000 فلیٹس مل رہے ہیں اس طبقے کو جو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنے گھر پہ اپنی چھت ہو۔ کرائے کے گھروں پہ رہتے تھے اور ساری زندگی سوچتے رہتے تھے کہ کبھی ایسا اللہ کہیں سے ان کو اتنا پیسے آ جائیں کہ وہ گھر بنا لیں۔ تو اب اس اسکیم کے تحت جو وہ کرایہ دیتے تھے اور یا دیتے ہیں، اسی کرائے کے اندر ان کے وہ گھر کے مالک بن جائیں گے۔ کراچی میں تقریباً 40% کچی آبادیاں ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ کچی آبادیوں کے لوگوں کو گھر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ فراش ٹاؤن میں ماڈرن سہولتیں میسر ہوں گی۔ کچی آبادیوں کو تبدیل کرنے کے لیے سی ڈی اے کا پلان بہت زبردست ہے۔ کراچی میں تو تقریباً 40% کچی آبادی اب ہو گئی ہے۔ یہ جو 600 گھر اب کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی ایک شروعات ہے۔ انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچی آبادی سب
के पास मालिकाना हुकूक आ जाए, इनको हम घर दें, पूरी फैसिलिटीज दें। अभी तो सब कुछ कच्ची आबादी में इलीगल है, ना वहाँ कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई पानी का इंतजाम है जिस तरह वो लोग रहते हैं। तो अब उनको भी हम इस तरह के, जो हमारा फ्राश टाउन में बाकायदा मॉडर्न फैसिलिटीज, सारी सब चीज उनको हो और उनको भी अपने घर की छत और मालिकाना हुकूक हो। मुल्की कर्जों के हवाले से इनका कहना था कि हर साल कर्जों की जो किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती हैं। बदकिस्मती से माजी के लिए गए कर्जों की वजह से मजीद कर्जे बढ़े। हमारी कोशिश है कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो, दौलत में इजाफा होगा तो हम मुल्क का कर्जा उतार सकेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, जिस वजीर आजम से हुकूमत नहीं चलती वो सिर्फ खवातीन को रोक सकते हैं। लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस एहलकारों ने मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को गेट पर रोक लिया, जिसके बाद दीगी रहनुमाओं के इसरार पर लेडीज पुलिस एहलकारों ने इन्हें अदालत जाने दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुझे अदालत के बाहर रोका गया, अदालत में आने नहीं दे रहे थे, जबकि कोई कानून अवामी मकाम पर आने से नहीं रोक सकता। मरियम औरंगजेब का कहना था कि जब मैंने रोकने वाले एहलकारों से बात की तो कहा गया कि आम गेट से चली जाए। इस पर मेरा कहना था कि हम कौन सा VIP गेट से अदालत आ रहे हैं, ये आम गेट ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस में शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हम कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शहर में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में कमिश्नर कराची और दीगर आला हुक्काम अदालत में पेश हुए। अदालत ने कमिश्नर कराची की तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट्स पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप समझ रहे हैं हम डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर काम करेंगे। ये क्या रिपोर्ट है, हर जगह लिखा है रिपोर्ट का इंतजार है। चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसे अफसर फारिग करें। इस मौके पर हिल पाक मुतासरीन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि हमने जिससे घर खरीदा मुआवजा तो दिलवाया जाए। 25 साल से हमारे घर बने हुए हैं और नक्शे सिंध हुकूमत ने पास किए। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे तो नहीं हैं, जब घर खरीदते हैं तो सब पता होता है। अदालत ने किडनी हिल पाक के मुतासरीन को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में YMC ग्राउंड से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई और कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि YMC ग्राउंड में तमाम काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ लाइट्स लगना बाकी हैं। कमिश्नर कराची ने शहर फैसल और शहर कायदीन से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने SBCA की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने DG SBCA से मुकालमा किया है कि आप जानते हैं SBCA बिल्डरों का एजेंट है, इतनी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, आप कहाँ होते हैं? कल कोई चीफ मिनिस्टर हाउस का इजाजतनामा दिखा दे, आप बना देंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कराची का कुछ नहीं पता, ये सिर्फ रबर स्टैंप है। हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करते होंगे। हमने वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने बोल दिया सब अच्छा है। हम कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ आपके बारे में ऐसा कहा, मगर हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट है, क्या करें? अदालत ने कहा कि SBCA चलाने वाला हर महीने खरबों रुपए बना रहा है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस SBCA में सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। कराची में एक के बाद एक हादसे के वाकयात। आयशा मंजिल के करीब कार उलट गई। कायदाबाद पुल पर ऑयल टैंकर और ट्रक के दरमियान तसादुम, ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल। कराची में आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई, लेकिन कार में सवार अफराद मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। जराये के मुताबिक आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गई। हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 3 अफराद मौजूद थे, जो कि मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। जराये के मुताबिक ड्राइवर समेत कार में मौजूद तीनों अफराद की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान है। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। दूसरी जानिब कराची में कायदाबाद पुल पर ऑयल टैंकर और ट्रक के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में टैंकर से सरसों का तेल बहकर कायदाबाद पुल की सड़क पर फैल गया। ऑयल टैंकर से इलाका मकीन जान को खतरे में डालकर बाल्टियों, बोतलों और थैलियों में तेल भर के ले गए। कायदाबाद पुल की सड़क पर तेल फैल जाने की वजह से दाऊद चौरंगी जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। फिसलन के सबब गिरकर कई मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। मुल्क में कोरोना के वार थम न सके, मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। 5300 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.6 रही।
पाकिस्तान में कोरोना के आदादो शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,816 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 5,329 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 98 हलाकतें हुई हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.6% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,124 हो गई और मजमूई केसेस 7,05,517 तक जा पहुंची है, जबकि फाल केसेस की तादाद 86,994 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,610 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,23,399 हो गई है। कानून की हुक्मरानी और करप्ट माफिया के हवाले से आवाज उठाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का कहना है कि मुल्क को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी सिर्फ हुक्मरानों की ही नहीं, बल्कि हर आम शहरी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। मुल्क में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जिसकी नजर में कानून की कोई हैसियत नहीं, और मेरे मुताबिक वो तबका करप्ट माफिया है। तहकीकाती इदारों के बुलाने पर मरियम नवाज के सीखपा होने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ जैसे हम कहते हैं, और अगर वो ना हो तो लाजमी बात है कि उससे तकलीफ होती है, और यही इंसान सोचता है कि हम किस रविश पे कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, क्या मुल्क को चलाने का या मुल्क को आगे लेके जाने का तरीकाकार यही है, और इस पे हम सब के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। ये सिर्फ हुकूमत की नहीं, आम शहरी से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम किस्म के जितने भी हमारे अदारे हैं उनके सब पे ये जिम्मेदारी आती है। ऐसा तबका मौजूद है जिसके लिए कानून कोई हैसियत नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। अगर वो तबके को मैं आइडेंटिफाई करूं, मैं पहचानूं, तो वो ये है कि वो एक करप्ट माफिया है और उनकी जेबों में करप्शन का पैसा इतना ज्यादा है कि वो रियासत के हर अदारे को खरीद सकते हैं और रियासत में किसी भी शख्स को अगर वो चाहें तो खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ ये है कि उनका पॉलिटिकल क्लाउट, उनकी पॉलिटिकल पावर होती है, लिहाजा वो लोगों को बेवकूफ़ बना के मजमा लगा के तो वो साथ ले जा सकते हैं। वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, जुर्म भी करते हैं और हुकूमतों में बैठे हुए हैं, लिहाजा वो चाहे तो शवाहिद सबूत 2 मिनट में ख़त्म कर दें, गायब कर देते हैं। अब इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि अगर अवाम में भी शऊर देखा जाए तो वो नहीं है। अगर अवाम में थोड़ा सा शऊर हो, जैसे मसलन मरियम बात कर रही थी कि उनके साथ PMLN के लोग जाएंगे, मौलाना ने कहा कि जनाब उनकी JUI के लोग जाएंगे, मौलाना के बारे में कहा जा रहा है कि उनको काफ़ी रकम बाहर से दी गई है इस काम के लिए, लिहाजा उनके लोग भी बहुत जाएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारे भी लोग जाएंगे। तो क्या मैसेज आप दे रहे हैं वहां पे? अब अगर ये सारे लोग जाएंगे वहां पे तो लाजमी बात है कि ये नैब को धमकाने के लिए, नैब को मरूब करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, और ये इतने लोगों को ले जाना किसी और के पास की बात नहीं होगी। लिहाजा आपका किसी भी लिहाज से तसाब करना वो मुमकिन नहीं रहा, इसलिए कि आप तो धमकियां देते हैं और आप अदारे को कुछ समझते ही नहीं, तो रूल ऑफ लॉ किधर गया? अगर इसका तजिया किया जाए तो आप देखें कि ये जो करप्ट माफिया है, ये तमाम लोग हैं जिनमें कि मौलाना पे भी करप्शन के इल्जामात हैं। खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि मौलाना ने फलां से इतना पैसा लिया, फलां से इतना लिया, ये खा गए। और अगर ये बातें सारी सच हैं तो मौलाना को जवाबदेह होना होगा, अगर सच नहीं है तो मौलाना सुरखरू होंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि ये होगा नहीं, क्योंकि ये सारे एक इनके हाथ या पॉलिटिकल पावर है या इनके हुकूमतों में है ये बैठे हुए, और अवाम का सारा पैसा चाटने के बाद, खा पी जाने के बाद भी ये सबसे ईमानदार, सबसे दीनदार और सबसे ज्यादा साफ सुथरे लोग हैं। और क्यों कि इनको सजा नहीं दी जा सकती, सारा निजाम इनके ताबे है। अब इसमें आप देखिए कि अभी ब्रॉडशीट केस जो था इसकी तहकीकात हुई, जस्टिस अजमत शेख साहब ने ये तहकीकात की और अजमत सईद साहब ने बताया कि कई चीजों के कागजाती गायब हैं। आपने एक सफीर मुकर्रर किया था वाजिद शमसुल हसन, वहां पे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन चोरी की उसने जाके जरदारी साहब के बिहाफ पे। वो स्विट्जरलैंड से सारे कागजात देके जरदारी साहब के वो $60 मिलियन वाले केस के कॉन्ट्रैक्ट में केस जो था, खुदा जाने उसने कहां रखे। आप सोचिए कि ये आपके मुल्क के सफीर हैं,
اور खिदमत वो किसकी कर रहे हैं? उस आदमी की जिसने मुल्क का पैसा खाया। पंजाब में करप्शन बेतहाशा लूटमार की। आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी एक धेले की भी अगर करप्शन साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूं। वो धेले की साबित कैसे हो? हर दूसरे दिन तो आग लगती थी पंजाब में। अब क्या आग लगती है? पिछले 2.5 सालों में तो कोई आग नहीं लगी। और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो हर दूसरे दिन रिकॉर्ड को आग लगती थी, किसी को नहीं पकड़ा जाता था, क्योंकि तहकीकात भी तो इन्हीं लोगों ने करनी होती थी। तहकीकात हों और किसी पे इल्जाम आयद ना हो तो आप समझें कि हुकूमत खुद मुलव्वस है। आप देखिए ना कि किस तरह रियासत की मशीनरी जो है वो खुद इस्तेमाल होती है मुजरिम को बचाने के लिए। यही हालात सिंध में। चीफ जस्टिस जाते हैं शजील मेमन साहब के कमरे में, वहां शराब की बोतल है, उसको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, वो रात रात में ही वो शराब की बोतल शहद की बोतल बन जाती है, सुबह देखें तो वो शहद होता है। तो किधर गया चीफ जस्टिस का चेक करना? अब जितने जी चाहें आप मुकदमात वगैरह बना लें, लेकिन जब रियासत की मशीनरी करप्ट आदमी का साथ दे रही है, माफिया का साथ दे रही है, आपका नहीं दे रही, रियासत का नहीं दे रही, तो आप उन मुकदमात का करेंगे क्या? अब देखिए डॉक्टर आसम का मुकदमा, शर्जील मेमन का मुकदमा, आगा सराज दुरानी का मुकदमा, फिर ये कि जरदारी साहब के मुकदमात हैं, हमारे मोहतरम अभी सेनेटर बने हैं यूसुफ गिलानी साहब, उनके मुकदमात हैं, राजा परवेज अशरफ के हैं, सबके हैं। पता ही नहीं किसी को, सालों साल गुजर गए, उनका कोई नाम ही नहीं है। जब अवाम खुद लुटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, फिर आप कर कह सकते हैं? नतीजा ये कि आज आपकी रियासत हुकूमत बेबस, एक बेबसी की तस्वीर है। और अगर कोई ताकतवर है तो वो करप्ट माफिया है। रियासत महकूम है, उनके हुक्म के नीचे चलती है। कोई अदारा रियासत की बजाय वो तामन अगर करता नजर आएगा तो करप्ट माफिया के साथ। नतीजा ये कि इन हालात में आप कर क्या सकते हैं? जिस मुल्क में तहकीकाती अदारे करप्ट के साथ मिले हों, जहां पुलिस सिर्फ ईमानदार आदमी को हरासा करती हो और करप्ट माफिया का साथ निभाती हो, जहां अदालतें करप्ट माफिया की खिदमत के लिए हाजिर हों, जैसे भी आपने देखा कि मरियम को चंद लम्हों में बेल बिफोर अरेस्ट दे दी गई, उसी वक्त मामला तय करके तो फौरन फारिग कर दिया। जिस मुल्क का हाल ये हो कि उसकी 2 नंबर इकॉनमी मजबूत हो और अपनी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो उसमें जान ना हो, जिस मुल्क का हाल ये हो कि वो कर्जों में डूबा हुआ हो, लेकिन उसकी अशराफिया वो लंदन में, दुबई में और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जायदादें रख के मजे लूट रही हो, अवाम महंगाई का रोना रोए, वो उनको परवाह ना हो। वो सिर्फ महंगाई का रोना उस वक्त तक रोए जब तक कि इमरान खान के खिलाफ है। बाकी तो इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ अगर 18 लाख लोग टैक्स देते हो तो फिर शिकवा नहीं हमें करना चाहिए कि मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये शिकवा नहीं करना चाहिए। हमें बैठ के सोचना चाहिए कि क्या हमारा रवैया दुरुस्त है। अगर हमने अपने आप को ठीक करना है तो फिर ये रवैये दुरुस्त करने होंगे, ईमानदारी का साथ देना होगा, करप्ट लोगों की सफाई करनी होगी, अदारों को मजबूत करना होगा, मेरिट को लाना होगा, ताकि अदारों में लोगों के चमचे जाके नौकरियां ना करें, बल्कि वहां पे मेरिट पे क्वालिफाइड लोग आए ताकि तहकीकात की जा सकें। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। दुबई की मसरूफ शाहरा अमारात रोड पर सुबह धुंध के बादल छाए रहे, जिसके दौरान हद निगाह सिफर होने से 28 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई की मशहूर शाहरा पर 28 गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ दौड़ी। ये वाकया शाहरा पर धुंध के बाइस हद निगाह सिफर होने की वजह से हुआ। दुबई पुलिस के महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मजहरुल मजरूरी ने मीडिया को बताया कि अमारात रोड पर गाड़ियां आपस में टकराने का वाकया पहले 2 गाड़ियों के तसादुम से शुरू हुआ। पीछे आने वाली तमाम गाड़ियां यके बाद दीगरे टकराती गईं और शाहरा पर ढेर लग गए। ब्रिगेडियर सैफुल मजहर ने मजीद कहा कि सड़क पर से गाड़ियों को हटाने
लगाने और ट्रैफिक बहाल करने में कई घंटे लग गए। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम एक खातून बुरी तरह जख्मी हुई हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी बयान में शहरियों को अलल सुबह और रात गए मरकजी शाहराह पर गाड़ी न चलाने की हिदायत की गई है। तुर्की में मामूल की तरबियती परवाज भरने वाला फौजी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट जाँ बहक। कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता होने के बाद तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक तुर्की में फौजी मशकों और अहम कौमी तकरीबात के दौरान फिजा में परवाज की महारत और करतब दिखाने वाला तैयारा कोनिया के फिजाई अड्डे से परवाज भरने के कुछ देर बाद लापता हो गया था। कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता होने के बाद तैयारे की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके दौरान तैयारे का मलबा कोनिया शहर के वस्त में मैदानी इलाके में मिल गया। जमीन बोझ होने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे के जले हुए मलबे से पायलट की लाश निकाल ली गई है। हादसे की वजह के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सदर तैयब उर्दवान ने तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले पायलट के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट रिचर्ड बर्गन ने बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन से कहा कि वाज़ेह करें कि पाकिस्तान को किन अदाद शुमार पर रेड लिस्ट में शामिल किया गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट रिचर्ड बर्गन ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत लिखा, जिसमें कहा गया वाज़ेह करें कि पाकिस्तान को किन एदादो शुमार पर रेड लिस्ट में शामिल किया गया। पाकिस्तान के मुकाबले दीगर कई ममालिक में इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, इन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। रिचर्ड बर्गन का कहना था कि इस फैसले पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाए। हुकूमत ने रेड लिस्ट के तरीक़ाकार को वाज़ेह नहीं किया। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तान गए बरतानवी शहरियों को वापसी के लिए कम वक्त दिया गया। कई मुसाफिर महंगे टिकट्स और होटल करंतना के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत ऐसे मुसाफिरों की माली मदद के लिए भी इकदाम उठाए। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में डालने के मामले पर 34 मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत लिखा था, जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट के 34 मेंबरान ने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में डालने से बरतानवी शहरी मुतासर होंगे। बरतानिया में 11 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं। मेंबरान पार्लियामेंट का खत में कहना था कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाले जाने का वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। रेड लिस्ट में डाले जाने के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने खत में कहा था कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट बरतानिया से भी कम है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस दीगर ममालिक से बहुत कम हैं जो रेड लिस्ट पर नहीं। वाज़ेह रहे कि बरतानवी रेड लिस्ट की वजह से 9 अप्रैल के बाद कोई गैर बरतानवी शहरी बरतानिया दाखिल नहीं हो सकेगा। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। वफाकी वजीर खजाना हम्माद असर का कहना है कि मुल्की मईशत इस साल की पेशगोई के मुकाबले में तेज शरह से तरक्की करेगी। हम्माद अजहर का कहना था कि अगले माली साल से शरह नमू का हदफ 4% से जायद रखेंगे। वज़ीर खजाना का कहना था कि टैक्स का निजाम दायरा कार बढ़ाने को तरजीह देंगे और टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। दूसरी जानब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने हम्माद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमती दावों के बरक्स टैक्स महसूल में 3 साल में सिर्फ 10% इजाफा हुआ, जो सालाना 4% से भी कम है। रमजान करीब आते ही ओपन मार्केट से फल गायब होना शुरू हो गए। कीनू की कीमत में खौफनाक इजाफा हो गया। रमजान शरीफ की आमद के बाइस अशिया खुर्दोनोश के बाद तमाम मसाला जात, मशरूबात, घी, ऑयल की कीमतों समेत तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी अपनी तमाम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया है। रमजान करीब आते ही ओपन मार्केट से कीनू और केला गायब होना शुरू हो गए हैं। कीनू की कीमत खौफनाक इजाफे के साथ 220 रुपए दर्जन, केला इजाफे के साथ 130 रुपए दर्जन कर दिया गया है। आइंदा 72 घंटों में तमाम अशिया की कीमतों में मजीद बेपनाह इजाफे का इम्कान है। ओपन मार्केट में रोजे की इफ्तारी के लिए शरबत बनाने के लिए तमाम इकसाम की मशरूबात की बोतलों की कीमत 600 रुपए से बढ़ाकर 840 रुपए 3 लीटर बड़ी बोतल कर दी गई है, जबकि मशरूबात की छोटी बोतलों की कीमत में एक 100 रुपए का फौरी इजाफा कर दिया गया। ओपन मार्केट में ऑयल जबरदस्त इजाफे के साथ 5 लीटर बोतल 1565 रुपए, घी 1520 रुपए 5 किलो, चीनी 110 रुपए किलो, चाय की पत्ती 565 रुपए जार, गरम मसाला मिक्स 1500
100 रुपए, सफेद चना 160 रुपए किलो, सुर्ख लोबिया 270 रुपए, सर्फ 1 किलो पैकेट 310 रुपए, शैम्पू अच्छा 398 रुपए बड़ी बोतल, हनी लोशन 238 रुपए, साबुन टिकिया 80 रुपए, टूथ पेस्ट बड़ा पैकेट 278 रुपए, शू पॉलिश 110 रुपए, लीमू 250 रुपए किलो, दही भले, फ्रूट चाट में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की कीमतों में 30% तक इजाफा कर दिया गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रवा माह के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए LNG की फी यूनिट कीमत 17 सेंट इजाफा कर दिया है, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.763 फी यूनिट हो गई है, जो कि मार्च में $9.59 फी यूनिट थी। सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की फी MMBTU कीमत $9.477 मुकर्रर की गई। गुज़िश्ता माह ये कीमत $9.31 फी MMBTU थी। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकारा इफ़त उमर ने कोरोना वैक्सीन लगवाने पर आवाम से माजरत कर ली। सार्फिन का कहना है कि अदाकारा ना ही पैरामेडिकल स्टाफ हैं और ना ही 60 साल बुजुर्ग, वो मुफ्त में वैक्सीन लगाकर मुस्तहिक आवाम का हक मार रही हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इफ़त उमर की जानिब से एक ट्वीट की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो माजरत ख्वाह हैं और शर्मिंदा हैं कि दिल की गहराइयों से माफी मांगती हैं। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसपे तारिक बशीर चीवा के खानदान को कोरोना की वैक्सीन लगवाते देखा गया था, जबकि वीडियो में इफ़त उमर को भी कोरोना के वैक्सीन लगवाते देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद 40 साल अदाकारा को कम उम्र होने के बावजूद वैक्सीन लगवाने पर मद्दाहों और दीगर शोबाए हाय जिंदगी की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। सार्फिन का कहना था कि अदाकारा ने ही पैरामेडिकल स्टाफ हैं और ना ही 60 साल बुजुर्ग, वो मुफ्त में वैक्सीन लगवाकर मुस्तहक अवाम का हक मार रही हैं। गुज़िश्ता बरस सीनियर अदाकार मंजर सहबाई से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाली पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा समीना अहमद हॉलीवुड में एंट्री देने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज इंस्टाग्राम पर अदाकार ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने मद्दाहों को कोरोना वैक्सीन लगवाने से मुतालिक इत्तला दी और मद्दाहों पर भी वैक्सीन लगवाने के लिए जोर दिया। मंजर सहबाई की पोस्ट पर कमेंट करते हुए रुबीना जावेद नामी सारिफ की जानिब से पूछा गया कि समीना जी कहाँ हैं। रुबीना जावेद के सवाल पर मंजर सहबाई ने जवाब देते हुए लिखा कि समीना हॉलीवुड सीरियल की शूटिंग के लिए थाईलैंड में है और 6 मई को वापस आएंगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार जोड़ी गुज़िश्ता बरस 4 अप्रैल को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई थी। मशहूर और मारूफ स्टेज परफॉर्मर, टीवी अदाकारा, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समीना अहमद पाकिस्तान की मुतादिद मशहूर ड्रामों में काम कर चुकी हैं। समीना अहमद के फन के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता कर चुकी है। बॉलीवुड के नौजवान अदाकार साकिब खान ने शोबिस छोड़कर दीन के रास्ते पर चलने का ऐलान कर दिया। कहा, मेरे पास इस वक्त शोबिस का बहुत सा काम और मुताबिक प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स हैं, मगर इसमें अल्लाह की मर्जी नहीं है। यकीनन इसने मेरे लिए बेहतर इंतखाब किया है। बॉलीवुड के नौजवान अदाकार और मॉडल साकिब खान ने शोबिस छोड़कर दीन के रास्ते पर चलने का ऐलान किया है। साकिब खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए शोबिस छोड़कर दीन का रास्ता अख्तियार करने का ऐलान किया। उन्होंने इस हवाले से एक तवील तहरीर लिखी जिसमें लिखा कि आज मेरी पोस्ट शोबिस छोड़ने से मुतालिक ऐलान पर मबनी है। मैं आइंदा मॉडलिंग और अदाकारी नहीं करूंगा। साकिब खान ने कहा कि मेरे पास इस वक्त शोबिस का बहुत सा काम और मुतादिद प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स है, मगर इसमें अल्लाह की मर्जी नहीं है। यकीनन इसने मेरे लिए बेहतर इंतखाब किया होगा। शोबिस की दुनिया को छोड़ने के लिए 1 माह बाद सना खान ने एक आलिम दीन से शादी कर ली थी। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। कैलिफोर्निया के समंदर में एक साथ 1000 डॉल्फिन की तैराकी का मुजाहिरा। खूबसूरत मनाजिर सयाहों ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। कैलिफोर्निया के समंदर में एक साथ 1000 डॉल्फिन की तैराकी का मुजाहिरा देखा गया। गैर मामूली नजारा सयाहों ने कैमरों में कैद कर लिया। डॉल्फिन की वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। दौरे कदीम से खानों का जायका, खुशबू में इजाफा, सेहत और खूबसूरती पर बेशुमार फवाइद के हामिल, सस्ते दामों, आसानी से दस्तयाब जड़ी बूटी के इस्तेमाल के कोई नुकसानात नहीं बल्कि फवाइद हैं बेशुमार। आइए जानते हैं आखिर ये जड़ी बूटी है कौन सी।
दौरे कदीम से खानों का जायका और खुशबू में इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से सेहत और खूबसूरती पर बेशुमार फवायद हासिल होते हैं, जिन्हें जानना और इसे इस्तेमाल में लाना निहायत जरूरी है। सस्ते दामों, आसानी से दस्तयाब कड़ी पत्ते के इस्तेमाल के कोई नुकसानात नहीं बल्कि फवायद हैं बेशुमार। ग़िज़ाई और तिबी माहिरीन के मुताबिक कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से निज़ाम हाजमा भी दुरुस्त होता है, जबकि ये सर दर्द, दिल की बीमारियों से बचाव समेत जिल्द और बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी निहायत मुफीद साबित होता है। कड़ी पत्ते में भरपूर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट अज्जा पाए जाते हैं जो मुतादिद बीमारियों से बचाव के लिए नागुज़ीर हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक कड़ी पत्ता इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मावन, जबकि इसमें ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं और शुगर की मिकदार को काबू में रखने में मददगार साबित होते हैं। इसकी बाकायदगी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल को भी मुतवाजिन रखा जा सकता है, मगर शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल रोजाना किया जाए। मार्केट में आसानी से सस्ते दामों में मिल जाने वाला कड़ी पत्ता इस्तेमाल में निहायत आसान है। इसका इस्तेमाल सलाद, दालों में बघार, हरी चटनी, नीम गर्म पानी में डालकर मुख्तलिफ खानों में पकाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। वनडे क्रिकेट में फखर जमान और इमामुल हक कामयाब तरीन पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी करार। इससे कबल यासिर हमीद और इमरान फरहत और नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज वनडे मैचेस में 4-4 सेंचुरी पार्टनरशिप कायम करने वाले ओपनिंग प्लेयर्स हैं। वनडे क्रिकेट में फखर जमान और इमामुल हक कामयाब तरीन पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी बन गए, जबकि दोनों ने 5 सेंचुरी शराकतों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तानी ओपनर्स ने जनूबी अफ्रीका से सीरीज के तीसरे वनडे में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इमामुल हक और फखर जमान सबसे ज्यादा सेंचुरी शराकतें कायम करने वाली पाकिस्तानी जोड़ी बन गए। दोनों ने 5 मरतबा ये संग मील उबूर किया। इससे कबल यासिर हमीद और इमरान फरहत और नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज वनडे मैचेस में 4-4 सेंचुरी पार्टनरशिप कायम करने वाले ओपनिंग प्लेयर्स थे। फखर जमान ने इब्तदाई 50 इनिंग्स में 2234 रन बनाने वाले जहीर अब्बास को पीछे छोड़ दिया। इनके रन्स अब 2261 हो चुके। बाबर आजम ने 50 इनिंग्स में 2129 रन बनाए थे। आलमी रिकॉर्ड हाशिम आमला के पास है। उन्होंने 50 इनिंग्स में 2486 रन स्कोर कर लिए थे। फखर जमान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा भी सर अंजाम दिया है। उन्होंने मजमूई तौर पर हालिया सीरीज में 302 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरियां शामिल हैं। इससे कबल साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने प्रोटीज के खिलाफ 3 मैचेस में 233 रन बनाए थे। आमतौर पर कप्तान बनने के बाद कई बैट्समैनों की कारकर्दगी में जवाल आता है, मगर बाबर आजम ने क़यादत संभालने के बाद 89.8 की औसत से रन बनाए हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बना डाला। ट्विटर पर जारी बयान में शाहिद अफरीदी ने जनूबी अफ्रीका बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों को IPL खेलने की इजाजत देने पर एतराज उठाया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि सीरीज के दौरान खिलाड़ियों को IPL खेलने के इजाजत देना हैरानकुन है। ये अफसोसनाक अमर है कि T20 लीग्स इंटरनेशनल क्रिकेट पर असरअंदाज हो रही हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद पर गर्मी के दरमियाने दर्जे की लहर के असरात नमूदार होना शुरू हो गए, जबकि गुज़िश्ता रोज पारा 39 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज शहर में 5 रोजा गर्म हो खुश्क मौसम की पेशगोई की थी, जिसके असरात नुमायां होने शुरू हो गए। बुध को दिन के वक्त समंदर की जुनूब मगरिबी हवाएं मुअत्तल रहीं, जबकि बलूचिस्तान की शुमाल मशरिकी सिमत की गर्म रेगिस्तानी हवाएं शहर पर गालिब रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम पारा 26% रहा। बाद हज़ार नमी का तनासब सिर्फ 28% रिकॉर्ड हुआ। गर्मी की मौजूदा लहर के दौरान हीट वेव का इम्कान नहीं है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।